morning, everyone. Namaskar all. Good morning, sir. Morning. So after a long break, we are here once again for our today's session. So in the last session, I assigned you guys. Actually, in the first session, I told you guys to get the data for those 11 points. After that, I told you guys to make the sectoral report on steel sector. So is there anyone who has finished his work? I did in fact send you, Mitro, both the tasks. You have sent it. Yeah, I sent it to you via WhatsApp. Acha, I will check it. Okay. Sir, I also sent it through WhatsApp. Yeah, I haven't checked your message. Okay, sir. Okay, anyone else? I think Sachi Jain, you also shared something, right? Probably today or yesterday. Yeah, I sent the data. So that means कि most of the candidates have not, they are not done with the steel sector report yet, right? So please get the steel sector report work done. And today in this session, we are going to go towards the equity research report writing. Let me just share my screen. And as also the result season is also here, so we will do something related to the result part of it as well. Just let me share my screen. Is this visible to all of you? My screen? Yes. Acha. Yes, sir. This is a PPT regarding how to write an equity research report. And this equity research report writing structure that you guys are going to learn from me here today in this session, you can apply this particular way of writing this particular points in any kind of report that you want, even for the buy side ones and even for the sell side ones. So those reports that you guys mostly get to see, which is available on the internet. If you see now, let me just give you an example. So this is a sell side report. Yeah, this report is actually a sell side report. This report is an initiating coverage report on Route Mobile, and it was made by HDFC Securities. So I had few other reports also, which Saurabh has personally shared with all of you guys. Let me just. So this is another report on Route Mobile. You can see this is also a sell side report. And this is on Apple India. Yeah. So these reports that you guys are watching, this is HDFC Securities report. This report was made on Route Mobile. Okay. And this report is also on Route Mobile made by MK Securities, and this report is also an initiating coverage report on FL India by Prabhudas Leeradhar, right? So from where I have got this kind of reports, so it is actually very easily available on the internet. Okay, so on the internet it is very easily available. Let me just show you, very easy sources from where you can gather all these kind of reports. Is that let me just show you the website. I have forgotten the name. Just a second.
name is Trendline, TRENDLYNE, trendline.com. Okay, if you come to this website na mane the research reports regarding mane any stock, on any stock, you guys will be able to get the research reports on this website very easily. Now how it is presented here, let me just show you. Guys, am I audible clearly? Yes, sir. Acha. So on this But can you website, brief the difference between the buy and the sell side? yeah, At high definitely. level? I will. So here now, if you come to this website, this trend line, here you can see all this kind of reports. Actually, these are all sell side. Okay, now what is this buy side and sell side report? Let's say what we do in our company Value Search. So our job is we invest our own money in the share market. So we have our asset under management of X, let's say crore rupees. So we are investing that particular money in share market. So for that purpose, whatever research that I do, whatever research that our senior analysts they are conducting, for the investment purpose, that is the buy side one. And sell side ones means, let's say if we start making research reports and if we start selling it to the public at large, let's say I have made one research report on Tata Steel and I am, let's say, selling it to anyone of it, and you are, let's say, buying it from me, let's say at a price of 100 rupees per report, like that you are, let's say, buying and initiating a fresh report from me, then this one is the sell side one. And buy side means you can money, whether it is hedge fund, whether it is mutual fund, whether it is PMS, even money PMS in large companies, PMS in LLPs, like that also. If this kind of money, for this kind of purposes, whatever reports you guys are making, that is the buy side one. Buy side means it is not for the external circulation, matlab it is not made available to public at large, it is used internally for the internal circulation purpose only. मतलब ये आपका बाहर नहीं जाएगा कंपनी से, इट विल स्टे इनसाइड द कंपनी, एंड कंपनी के खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में दिस रिपोर्ट्स आर गोइंग टू हेल्प. इज दैट क्लियर? एंड फॉर द सेल साइड वंस यू कैन बाई इट फ्रॉम brokerage houses, from equity research companies, like that you can. Equity Master, this website called Equity Master, they are equity research firm only, and they sell equity research reports to the clients. Let's say you are buying equity research report from, let's say, ICICI Securities or Geojit, or even for the large investment banks, like even if you buy a report from JP Morgan, then it is their sell side division. Is that clear? छोटा सा distinction. Right, and which one is demanding in the market? Huh? Which one is in demand in market? Which one From pays a jobs lot? perspective, Jobs perspective as well as money? it's a bit difficult to say, because see, this report that I just showed you guys, this one report, whoever has made this report, it is not anyone's it is not anyone's particular work कि भाई this analyst has only made it. It is not like that. He had so her name is Aditi Patil, right? And this is her name, her email ID and contact number, her desk number and everything is given here. But she is not the only person who has made this report. She also had other junior analyst who has assisted her to make this report. Okay, so which one is in demand? कैसे इसका आंसर करें? आपका वैल्यू कितना है? It depends on that. Sell side analyst, they are earning, let's say, 2 lakh per month, 3 lakh per month, like that. And in the junior level, they are earning 25,000 per month. And buy side का भी same है, वैसा ही है. But buy side का becoming a buy side analyst is a bit difficult. I would say it is a bit difficult. Why? Because you have lot of responsibilities on your head, right? Because on the basis of your research report, people are going to invest, let's say, 20 crore rupees. उसका अगर only 5%, if the company loses 20 crores का 5%, आप देख लीजिए कितना होता है. So that much money you are going to lose, your company is going to lose. So buy side में your headache, your responsibility is going to be little more than the sell side ones. But हाँ, सैलरी पर्सपेक्टिव से सेल साइड का, मतलब एटलीस्ट जॉब पर्सपेक्टिव से सेल साइड का जॉब मिलना थोड़ा सा इजी होता है, बट बाई साइड में थोड़ा मज़ा है. पर्सनली आई थिंक आई एम एक्चुअली अ बाई साइड एनालिस्ट, तो बाई साइड में थोड़ा मज़ा है, थोड़ा क्या बोले,
एक्साइटिंग ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आई व्हाट आई डू इन माई कंपनी वैल्यू सर्च इज दैट आई हैंडल ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 crores ऑल द टाइम. आई एम हैंडलिंग दैट मच ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी. तो या आई हैव दैट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. इफ आई गो रॉन्ग लिटिल बिट तो कितना लॉस हो सकता है, मैंने इतना लॉस हो सकता है कि आई मे लूज माई एंटायर ईयर्स सैलरी देयर. So then also I won't be able to compensate. So that much level of money commitment I have, that much risk I have on my head. I am handling that much money on a daily basis. तो उसमें अगर कुछ भी डिसीजन गलत हो जाए तो इतना लॉस हो जाएगा. That is the thing. Okay, one more question. Based on your experience, how much time it will take to prepare a research report, and when the fruits will be yield on the research report, or like after working 2 or 3 or 6 months, then if your high level management is satisfied, then only they will appreciate and release the payment for you, or how it works in general, based on your experience. This kind of questions I think you can call me and ask, right? Let me just Okay. take the class forward right now. This kind of questions you can personally ask me, but yeah, in order to learn how to make a equity research report properly, it takes at least 2 years. 2 years of experience. It is required to be at least in a level where you can call yourself, yeah, I am an equity research analyst, and still I cannot call myself that. After having so much of share markets experience, I have been investing in the market since 2015. Still, I won't call myself a good analyst. I can call myself a good investor. Definitely, I call myself at least a better placed investor than most of the candidates. But I won't say I'm a good analyst. I am not actually. I'm a good investor, but not a good analyst. Achha. So see, this is a sell-side research report. You can see on Affle India, Root Mobile. But these reports, if you go in depth, actually we have shared all these reports with all of you guys already. But yeah, after the session is over, we are going to share all these reports once again in the group. So if you guys go through it, so there are many things there which you guys won't understand. So for that, for you guys reference, we are going to go through this report on IGM for the structural purpose only, and then this JSW Steel's report. It is very easy to understand. So we will take you guys through it. Now let me just take you guys through this PPT now. Equity research report writing. Now, when you guys are going to write an equity research report on any company, it may be a pharmaceutical company, a banking institution, NBFC, insurance company, anything for that matter, any mining company, engineering company, capital goods company, anything for that matter. What are the things, what are the 5 main points that must be there? What are the 5 steps involved in the equity research report writing? So first is that the macro and microeconomic analysis. Okay, so why this macro and microeconomic analysis, and where we are going to do it? So we have already done it on our day 1, right? Everyone? I gave you guys this 11-point analysis, right? So there we already have done this one, macro and microeconomic analysis. Now at least we have a little bit idea, little bit sense of what is happening globally, right? Everyone? Yes, no? sir. Yes, sir. तो उतना डेटा माइनिंग करवाया आप लोगों से, उतना जीडीपी, उतना इन्फ्लेशन, उतना पर कैपिटा इनकम, उतना मेहनत करवाया था आप लोगों से, just to get this 1 point done. Just to get this 1 point done. And you know the main problem with the professionals, with the analysts, is that they may be good with the quantitative parts, but about this micro and macro thing, they lag. Generally people lag. So this is why the first task that I have given you guys is do this 11-point analysis. So this macro and microeconomic analysis, it is partially done for you. Industry analysis. So I just ask you guys, are you guys done with this steel sector report? So industry analysis. That was this industry analysis. Now we will get into company fundamental analysis. Then we have valuation analysis and forecast. We do not have this part in our training. Research training cum internship. It is not valuation. This is financial modeling, valuation and forecasting. This particular part is not in our curriculum, in our training. And then ongoing review. It will be partially there. Actually, it is
This is the fourth quarter ending FY22, right? And currently which quarter is going on? Q1 of FY23 is going on right now, right? Post this 1st April, actually post 31st of March, from this 1st of April 2022, which financial year is going on? FY23 of Q1, right? Q1 FY23 is going on. So, मतलब from 1st January, which quarter was going on? Q4 FY22, right? Everyone. तो आपका 1st जनवरी 2022 के बाद से कौन सा आपका क्वार्टर का रिजल्ट पेंडिंग था? थर्ड क्वार्टर ऑफ FY22 का, राइट? सो दैट रिजल्ट केम इन प्रीवियस क्वार्टर. अभी आपका ये जो क्वार्टर एंडिंग चल रहा है, लेट मी जस्ट शो यू प्रैक्टिकली सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. Probably you guys facing little bit difficulty to understand my words. Just let me show you. Here you guys can you guys see it? Result calendar, forthcoming results, BAC. Yes. Yes, sir. So let's say you are invested in, let's say, TCS, right? Let's say you are invested in TCS, probably in HUL, probably in L&T, or probably in Infosys, right? तो आपकी कंपनी का रिजल्ट कब आने वाला है? हाउ यू गाइस आर गोइंग टू नो? कहाँ से आपको पता चलेगा? भाई मैं आई एम इन्वेस्टेड इन TCS, बट आई डू नॉट नो when this company is going to declare the result. So in order to know that, you can come to this website. You can just Google BSE result calendar. Click on the link. तो यहाँ पे आपको रिजल्ट कैलेंडर, फोर्थकमिंग रिजल्ट्स का पूरा आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा. सो हाउ यू कैन फाइंड इज दैट फ्रॉम डेट टू डेट, मतलब यू कैन एंटर द डेट्स. लेट्स से टुडे इज 9th ऑफ अप्रैल, तो यहाँ पे आप 9th ऑफ अप्रैल एंटर कीजिए. यहाँ पे लेट्स से यू वांट टू नो फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल टिल 11th ऑफ अप्रैल कौन कौन सा रिजल्ट इन बिटवीन आने वाला है. सो यू कैन जस्ट गेट द डेट्स ओवर हियर एंड सबमिट. यू विल गेट द लिस्ट ऑफ इट. बट हियर आई डो नॉट हैव एनी इनपुट्स, मतलब जितने भी रिजल्ट फोर्थकमिंग है सभी का मुझे लिस्ट चाहिए. सो इट इज हियर. लेट्स से यू आर लुकिंग फॉर TCS. व्हाई आई एम सेइंग दिस? आई थिंक दिस वे. या TCS का कब रिजल्ट है आपका? 11th ऑफ अप्रैल, राइट? अब ये ऑन दिस पर्टिकुलर डेट 11th ऑफ अप्रैल TCS के कौन से क्वार्टर का रिजल्ट इज गोइंग टू कम? एनी आइडिया? कौन से क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है TCS का? Fourth quarter 2022. Fourth quarter. Fourth quarter 2022, right? So this is what I was saying. This is what it means, ongoing review. Ongoing review मतलब भाई पिछले 3 quarters is already gone, right? The last 3 quarters has already gone by. Now this is the 4th quarter. So let's say if you have made any financial model में you had your क्या बोलते हैं आपका FY21 का डेटा was there, then Q1 of FY22, Q2 of FY22, Q3 of FY22, like that. Just a second, so that your concept is 100% clear. Let me put it on Excel. Just let me put it on Excel so that you guys get it properly. Let's say if you मेक अ फाइनेंशियल मॉडल, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो? 2021, देन यहाँ पे आप करते हो क्या? बट यू गाइस डू Q1 FY, देन you do 22 like that, Q2, right? Like that you guys do ना. ऑनगोइंग रिव्यू मतलब आपका यहाँ पे FY21 का चला गया आपका रिजल्ट. इट वॉज द मैंने ईयरली रिजल्ट. यू राइट इट हियर. Then आपका Q1, Q2, then here you do Q3 FY22. Now you have number still Q3 FY22. अब आपका Q4 का यहाँ पे आएगा. Q4 का 22 का रिजल्ट यहाँ पे आएगा. बट आपके पास TCS का रिजल्ट only available till this point, right? Your result is only available till this point. आपका 4th क्वार्टर का रिजल्ट अभी अवेलेबल नहीं है. आपका 4th क्वार्टर का रिजल्ट अवेलेबल कब होगा? ऑन व्हिच डेट इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल? 11th April. 11th of April को, राइट? तो टुडे इज 9th of April. इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड on this company TCS,
व्हाट इनपुट डू यू हैव कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा कि खराब आएगा, दिस कंपनीज रिजल्ट इज गोइंग टू बी गुड और बैड. On the basis of that you can take trade on FNO at least, right? Or at least even if not in FNO, तो cash में भी you can take your position. अरे इतना बीच में क्यों आते हो आप लोग, टाइम से ज्वाइन कीजिए ना. तो फाइनेंशियल मॉडल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट कि भाई इसमें द फोरकास्टिंग पार्ट दैट वाज मेंशन्ड हियर ना, सो दैट थिंग इज टेकन केयर ऑफ. This valuation analysis and forecast. This forecasting part is taken care of in the financial model. यहाँ पे if you had data here, then here from the management's guidance, you could have at least forecasted what could be the potential, revenue from operations of the company, and what could have been the bottom line. That means the profit after tax of the company. So that is the beauty of the financial model. But even without having an understanding, knowing ki how to make financial model, even after that you guys can at least somewhat predict ki how is going to be the result of these companies. Now how we are going to do this kind of things, I will teach that to all of you. Financial model आपको बनाना नहीं आता है. In spite of that, how you can at least somewhat predict ki how the result is going to be. We will teach that also, but not this particular part. So ongoing review is very much important. Macro and micro we have already somewhat, we have gone through it, we have done it. Industry analysis also we have done it. Company fundamental is left, we haven't gotten into this thing. Ongoing review we will teach. तो भाई macro and micro economic analysis में what are the things that we are considering while we are making an equity research report. Economic growth trends क्या चल रहा है अभी. Economic growth trends मतलब आपका लास्ट 5 years का, लेट्स से TCS का, इट इज़ एन इंडियन कंपनी, राइट, इंडियन IT कंपनी, बट वेयर इट्स ऑपरेशंस आर मेनली फोकस्ड इन. कैन यू गाइस टेल मी कि इसका ऑपरेशन कहाँ फोकस्ड है ज़्यादा? सॉफ्टवेयर. हाँ, मतलब कौन से जियोग्राफीज में इसका ऑपरेशंस आर मेनली फोकस्ड ऑन? यूएस एंड यूरोप. इंडिया का शेयर इज वेरी लो. Globally, they operate. मेनली यूरोप एंड आपका यूएस, वहाँ से इन लोगों का ज़्यादा इनकम होता है. आप TCS का जाके रेवेन्यू का स्प्लिट देखिए. रेवेन्यू का स्प्लिट आपको कहाँ से मिलेगा? यू विल गेट दैट फ्रॉम द नोट्स टू अकाउंट्स. वहाँ पे आपके रेवेन्यू का जो बाइफर्केशन होता है वहाँ पे इट इज़ गिवन. वहाँ पे आपका स्टैंडर्ड बेसिस एंड कॉन्सोल बेसिस दोनों बेसिस पे आपका नोट्स टू अकाउंट्स में वहाँ पे आपका बाइफर्केशन दिखने को मिल जाएगा. This is why notes to accounts, reading notes to accounts is very very important, and we have special videos on those things कि कैसे आपको बैलेंस शीट को पढ़ने चाहिए, कैसे आपको एंटायर एनुअल रिपोर्ट को स्टडी करना चाहिए. We have sessions on that. तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड्स, इसका अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच important. Why it is important? TCS, this company is based in India. Okay, fine. तो बट इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है? इसका रेवेन्यू आता है यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, एंड यूरोपियन यूनियन से आ रहा है. यूरोपियन यूनियन आप लोग बहुत पूछ रहे थे, राइट? तो यूरोपियन यूनियन से इसका रेवेन्यू आता है, यूरोपियन कंट्री से इसका रेवेन्यू आ रहा है. तो यूरोप का अगर GDP ग्रोथ रेट, लेट्स से यूरोप का अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं रहेगा, अगर कम रहेगा, अगर फ्लैट रहेगा, अगर नेगेटिव ग्रोथ रहेगा, तो क्या वहाँ पे बिजनेस का ओवरऑल का इकोनॉमी का क्या ग्रोथ हो रहा है क्या वहाँ पे? सिंपली एकदम सिंपलिस्टिक सोचिए, सिंपलिस्टिक सोच के मुझे बताइए. वहाँ पे आपका GDP ग्रोथ रेट लेट्स से गोइंग अराउंड 1%, 2% लाइक दैट, और समटाइम्स इवन फ्यू ईयर्स आपका नेगेटिव में भी जा रहा है. तो वहाँ पे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ कोई स्काई रॉकेटिंग कुछ एक्साइटिंग है क्या वहाँ पे? नहीं. No. No. तो वहाँ पे बिजनेस का ग्रोथ कैन इट बी रियली गुड? बिजनेस का क्या ग्रोथ रेट बहुत हो रहा है वहाँ पे? No. बहुत नहीं हो रहा है ना. अच्छा, यूएस में लेट्स थिंक अबाउट यूएस नाउ. यूएस में आपका लेट्स से GDP ग्रोथ रेट इज 2%, राइट? अब इट इज़ द लार्जेस्ट इकॉनमी. वो अगर 2% से वो अगर बढ़ के 3% भी हो जाए, ठीक है, GDP ग्रोथ रेट आपका 3% हो जाए, इट कैन बी ड्यू टू द बेस इफेक्ट कि आपका कोविड के टाइम पे द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड, देन मनी प्रिंटिंग, ऑल दो स्टफ, इन्फ्लेशन, ऑल दो स्टफ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपका 2% से लेट्स से GDP ग्रोथ रेट बिकम्स 3%. आपका GDP तो हाई हुआ है ना, तो एटलीस्ट वहाँ पे अगर आपका GDP हाई जा रहा है तो आपका बिजनेस का ग्रोथ क्या हाई होगा? व्हाट डू यू थिंक?
Yes, if GDP is doing good overall, then it will be good for फिर आपका US. बिजनेस का ग्रोथ भी हाई होगा. नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल मैंने पास्ट एग्जांपल, उससे आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा. In 2016, what was the GDP in India? It was around 7.5, right? 2016 में the year demonetization happened. उस ईयर में आपका GDP था वैसा ही कुछ. ओके, एंड बिफोर दैट देयर वाज चाइनीज क्राइसिस, मतलब चाइना में लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ था आपका अराउंड 2016 जनवरी फरवरी में. चाइना से लिक्विडिटी क्राइसिस हैपेंड एंड मार्केट करेक्टेड बाय 25% इन इंडिया. ठीक है, एंड आई वाज मैंने कम्प्लीटली न्यू एट दैट टाइम इन इंडियन मार्केट. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ एनी मार्केट करेक्शन. तो देन आपका मार्केट अगेन रिकवर्ड पोस्ट इंडियन बजट एंड ऑल दो स्टफ. स्लोली इट स्टार्टेड टर्निंग अराउंड. देन आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ, बट इंडिया का जीडीपी वाज अराउंड 7.52, अराउंड लाइक दैट 7.4 7.5 इट वाज लाइक दैट. 2017 में इट बिकेम मोर देन 8%. ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट बिकेम मोर देन हायर देन 8%. उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट होकर आपका 6.2 वैसा हुआ, नीचे आया 4.2 वैसा हो गया आपका 2019 में, राइट? तो आप मुझे जस्ट सिंपली टेल मी वन थिंग, लास्ट 5 ईयर्स का अगर आप जीडीपी को एनालाइज करोगे, जीडीपी का अगर आप ट्रेंड एनालाइज करोगे, उसके साथ साथ आप कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का अगर आप कंपैरिजन आप देखिए कंपेयर करके 2017 में, यू गाइस गो बैक टू 2017 नंबर्स ऑफ दिस कॉर्पोरेट हाउसेस, तब उन लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन होता था, अब 2018 में जाके कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन चेक कीजिए, 2019 में जाके प्रॉफिट मार्जिन चेक कीजिए. आपको क्या लगता है प्रॉफिट मार्जिन उस टाइम पे ज़्यादा था कि कम था? जीडीपी घट गया है, बीच में आपका 8% से 4% हो गया. प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हुआ कि कम हो गया? कम हो गया ना. बट उस टाइम पे अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखोगे तो यू गाइस वोंट अंडरस्टैंड कि भाई इतना सच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. आई हैव लिव्ड दोस टाइम, तो आई नो व्हाट वाज एग्जैक्टली हैपनिंग एट दैट टाइम. ठीक है, 2017 में इट वाज मैंने जीडीपी वाज सिटिंग 8.2 8.3 8.4 लाइक दैट. तो उस टाइम पे इतना आपका स्काईरॉकेटिंग जीडीपी था. बट उसके बाद आपका इंडिया में जो कोविड क्राइसिस, सॉरी आई मीन आपका लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ ड्यू टू दिस आईएल एंड एफएस क्राइसिस एंड ऑल दो स्टफ. फिर आपका डीएचएफएल गिर गया. ये सब जो प्रॉब्लम्स हुआ उस टाइम पे, जी का प्रॉब्लम हुआ आपका, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस का, ये सब जो प्रॉब्लम्स हुआ था उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज टाइम्स. तो उस टाइम पे आपका जीडीपी भी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था. एंड उस टाइम पे ओनली सेंसेक्स एंड निफ्टी वाज टचिंग द स्काई. बट आप मिड कैप में देखिए, स्मॉल कैप में देखिए, उन कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी जाके चेक कीजिए, तो आपका एक्चुअल में अंडरलाइंग मार्केट का, अंडरलाइंग इकोनॉमी का जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड्स. मैं जस्ट बोल रहा हूँ, आप 2018 का जाके किसी भी कंपनी का आप रिजल्ट चेक कीजिए, छोटे मोटे एकदम छोटे छोटे आप माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज का आप जाके चेक कीजिए, 100 करोड़ 200 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनीज का आप चेक कीजिए. उस टाइम पे मैं आपको एक सिंपल नाम दे रहा हूँ, प्रकाश इंडस्ट्रीज बोल के एक कंपनी है, दैट इज अ स्टील कंपनी. ओके, स्मॉल, वेरी स्मॉल, puny लिटिल स्टील कंपनी. You just go and check the profitability of Prakash Industries at that time and what is the profitability right now. अब जाके चेक कीजिए. You guys will understand my point. Economic growth trend का analysis, you guys have already done this. Interest rate forecast. Now, why this interest rate is so important? I think that I don't have to explain it once again, right? Interest rate का why it is so important? Everyone, hello. You guys know, right? What is this interest rate forecast? What is the significance of interest rate now? Hello? It is the one of the component of top-down approach, and if there is change of interest rate, the entire economy will be upside or downside, right? So, Yeah. So what happened in January? So Fed said कि भाई we are going to hike the interest rate, right? So as a result, there was a severe market turmoil, right, at that time. The importance of No, interest rate is conversely related with the बोलिए. Yeah, please. Hello.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, we are getting your hello. Sir. So what is the impact of this interest rate? After interest rate, if it rises, so what is the impact of it? It hits your profitability, right? It is conversely related to this. So आपका Opposite. profitability hit हो रहा है, right? Hit हो रहा है, right? And if the interest rate becomes zero, let's say in a zero interest rate situation, वहाँ पे आपका what could be the impact? Market should go up. Market should go up, but from the lending perspective, how it is going to be? Business Compare will करोगे go. 0% में. Let's say you are a bank, you are a owner No, of no, the I bank. will take. I being an industry, I will be easy. It's easy for me Definitely, to take. you will chase that liquidity, right? That free liquidity, you are Right. going to chase that. But as a lender, will you be interested to lend money to anyone? As a borrower, you might be super interested, but as a lender, are you interested? Probably not. Probably Why not. so? Yeah. No. Because then also you have your credibility का problem होता है, right? Then also you can face NPA. Yes, definitely you will face lesser NPA, but there is still a chance, right? कि वो the business का operation it also depends ना कि भाई वो business successful होगा कि नहीं finally जाके. So then also you can पैसा ना दे के विजय माल्या you can become. That is one risk. Then another risk is that कि भाई आपका lend करके फायदा क्या होगा ultimately zero interest rate environment में you won't have any फायदा to lend the money because you won't even earn your net interest income आपका तो zero हो जाएगा. उल्टा आपका administrative जो खर्चा आएगा वो आपका तो negative में चला जाएगा. So in the zero interest rate environment it is also not good and super high interest rate then also it will beat down the inflation but आपका इंडस्ट्री का ग्रोथ तो नहीं रहेगा वहाँ. So this is the impact. This is why मतलब आपका इंटरेस्ट रेट का इतना चलता है. And this is why I told you guys to gather the data regarding this interest rate. Now the next thing is that political developments. Politics का नाम सुनते ही इंडिया में you guys think of अरे politics is so dirty and all the stuff, but you can see what is happening in the globally. China and this Taiwan, all these things. Then your Russia and Ukraine. You guys are already watching it, right? Then you had also this US and China trade war. Then India and China का आपका जो war हुआ था आपका in 2020. So these are the political developments. You guys cannot ignore this political developments that is taking place. अच्छा, past and current sectoral trends. Past and current sectoral trend means आपका from 2016, 2017, 2018 till आपका March, till that point, आपका steel sector में there was a booming up cycle. Then it came down. 2019 it was flat. Then आपका 2020 year में it again started rising up. The cycle again turn around and आपका profitability फिर से आपका started going up in the steel sector. Right? Everyone? Yes, sir. And Hello, sir. Sorry, again going back to the previous question. Can you guide us about what is the interest rate to be considered as a normal? Like 2 is normal, 3 is normal, 4 is high, 5 is higher, somewhat like that. Can we you will guide us? have corrective sessions on that. आप लोग जो डेटा गैदर करोगे प्लीज मुझे पहले ये थोड़ा एक्सप्लेन करने लेने दीजिए. बीच में Right. थोड़ा ठीक है. तो वी विल हैव आवर सेशंस करेक्शन सेशंस हम लोगों का रहेगा, चिंता मत कीजिए. ठीक है. अच्छा, पास्ट एंड करंट सेक्टोरल ट्रेंड्स देखिए आपका 2018 में देयर वाज अ रियल एस्टेट बबल. रियल एस्टेट आपका साइकिल अप टर्न हुआ, फिर जो डाउन टर्न हुआ स्टिल इट हैज़ नॉट रिकवर्ड येट. अभी people are saying कि again it is going to recover because of this मतलब at least in India because of this RERA, then आपका ये NCLT, then all those GST and all those stuff, इतना कुछ compliances के बाद again it is going to go up once again. This real estate cycle people are saying it, right? Then आपका IT में देखिए आपका 2001 उस टाइम पे आपका .com boom हुआ था, उस टाइम पे .com bubble. उसके बाद आपका throughout this many years आपका IT का cycle was actually down. इंडिया में का IT cycle was always roaring, ठीक है, but globally it was not really that much flourishing, right?
लेकिन आपका ड्यू टू दिस कोविड, दिस ग्लोबलाइजेशन, आपका ये डिजिटलाइजेशन, वंस अगेन दिस साइकिल इज गोइंग अप. फार्मास्यूटिकल का आपका 2015 में फार्मास्यूटिकल फॉर इंडिया इट वाज ओवर, राइट? हेलो, Yes. तो Yes, sir. 2015 के बाद से आपका 2016 दिस यूएस एफडीए, ऑल देयर रेस्ट्रिक्शंस, ऑल दो स्टफ, बिकॉज ऑफ दिस ऑल द कंपनीज, सन फार्मास्यूटिकल का आप देख लीजिए, आपका रैनबैक्सी का एक्विजिशन हुआ था, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, बट अब सन फार्मा को देख लीजिए, ओनली फार्मास्यूटिकल कंपनीज दैट वाज कंसिस्टेंटली डूइंग वेल इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स वाज डिवीज लैब एंड लिटिल बिट ऑफ इप्का लैब्स. Other than these two companies, no one was performing well. आपका Divi's Lab, I think in 2018 it was around 600 rupees. अभी आपका 4,200 rupees में चल रहा है अभी Divi's Lab. तो this has been the trend. I think it was in 2017 around October. At that time, Divi's Lab was trading around 600 rupees. तो वहाँ से इतना consistently it has compounded and it has given return, right? But other than these 2, 3, 4 companies, all other companies they were completely disrupted, right? So these are the past and current sector trends. If you had, let's say, made an investment in pharmaceutical companies in 2017, तो generally आपका लॉस होता है. आपका डॉक्टर रेड्डीज देख लीजिए, आप सन फार्मा देख लीजिए, इवन आपका in 2015 the share price of Sun Pharmaceutical was, I think, highest it was around 1200 rupees. वहाँ से तो अभी क्रॉस भी नहीं किया है, 1000 रुपीज़ भी क्रॉस नहीं किया है. तो अगर आपने 2015 में इन्वेस्ट किया था, इफ़ यू आर स्टक इन सन फार्मा फॉर दिस मेनी ईयर्स, आपका ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए, तो नेट रिटर्न क्या बनता? नेट 50%. तो दिस इज़ वाई पास्ट एंड करंट सेक्टरल ट्रेंड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट कंपनीज इन 2008, उसके बाद से आपका सेक्टर ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया. तो उस प्लेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट आपका था, तो लेट्स से यू वर इन्वेस्टेड इन यूनिटेक, तो वो कंपनी तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, राइट? सो दिस इज वाई कौन सा सेक्टर आपका अप टर्न में है, कौन सा डाउन टर्न में है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इन्वेस्टमेंट्स. कौन सा गाड़ी अभी चल रहा है एंड कौन सा गाड़ी चलने वाला है, दैट इज द मेन थिंग. जो चलेगा उसमें बैठ जाओगे तो ठीक है, चलेगा, आपका भी रिटर्न बन जाएगा. नहीं, अगर आप गलत गाड़ी में बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? So this is what I mean by saying past and current sectoral trends. Stages of the business cycle, same thing. अच्छा, monetary and fiscal policies, तो इसका I think I don't have to explain, right? Hello? Do I need to explain this thing? Am I audible? Hello? अगर थोड़ा वो टॉपिक टच कर दे तो अच्छा रहे. ठीक है. तो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मतलब यू हैड योर मॉनेटरी पॉलिसीज, मैंने आपका क्वार्टरली जो मॉनेटरी पॉलिसीज होता है आरबीआई का, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आई मेंशन्ड वन थिंग कि सेंट्रल बैंक स्टैंड्स राइट इन दिस 11 पॉइंट एनालिसिस कि हॉकिश है कि क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी दे रहा है कि आपका एक्सपेंशनरी पॉलिसीज दे रहा है. आपका 2020 में दे हैड दिस टीएलटीआरओ, ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी थिंग कि आपका सेंट्रल बैंक्स का व्हाट इज द स्टैंड, एंड फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट का. अच्छा, नॉट ओनली बजट बट आपका क्या बोलते हैं फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री व्हाट एवर कम्स दैट इज योर फिस्कल पॉलिसी. आपका 2018 में दे हैड दिस कॉर्पोरेट रेट कट, राइट? कॉर्पोरेट टैक्स रेट का कट हुआ था एंड जस्ट ऑन एन इंटरडे बेसिस, मतलब आपका 12 o'clock आपका आई थिंक दैट अनाउंसमेंट केम टू द मार्केट अराउंड 11:30 इन द मॉर्निंग एंड आपका विद इन जस्ट 30 मिनट्स ना, 30 मिनट्स फॉर 11:30 से आपका 12 बजे तक उसी रेंज में आपका न्यूज़ आया था. एंड विद इन फ्यू मिनट्स, प्रोबेबली 15-20 मिनट्स में आपका एशियन पेंट्स, आई हैव एशियन पेंट्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम, मैंने सिंस 2018 मेरे पास एशियन पेंट्स है. एंड सितंबर में दिस अनाउंसमेंट केम एंड on intraday basis it went up by 10%. Next day also it went up by 10% and the market was up by around 6 to 6.5%. तो this is the power of fiscal policy कि आपका entire market आपका 5, 6, 7, 8% एक ही दिन में इंट्राडे में it can go up. And the importance of it I don't have to explain, right? Fiscal policy में आपका budget का कितना expectation रहता है budget से आपका capex, they have said कि they are going to make a capex of 7,50,000 crore rupees का capex होएगा. तो इतना कैपेक्स होता है मतलब $100 बिलियन का दे आर गोइंग टू डू द कैपेक्स. सो
So it's not a small thing, right? In this year's budget it was announced. So this is the monetary and fiscal policy stuff. So ये सब अगर आप समझ जाओगे, let's say now how it is going to impact our steel sector, monetary and fiscal policy, all this stuff, all these things that is mentioned here. How these factors, this let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, these 6 factors, how they are going to impact our steel sector. Any guess? थोड़ा idea दीजिए, सोचिए, just think about it. How these 6 points they can impact the steel sector in India. Just imagine कीजिए थोड़ा सा. How these 6 points can impact Indian steel sector. इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड्स कैसे स्टील सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा? बोलिए सोचिए. How this is going to impact the Indian steel sector? Abhishek, Aditya, Anurag, Arya, Ashwini, देवांशी, बोलिए. रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा सर. कैसे होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड, सिंपल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड मतलब लेट्स से आपका जीडीपी हाई जाएगा, अभी आपका कम चल रहा है, राइट? जो भी चल रहा है आप छोड़ दीजिए. लेट्स से फ्रॉम 2% इफ इट बिकम 6% इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आपका इस करंट आपका FY23 में इफ द जीडीपी बिकम्स लेट्स से 5%, तो आपका तो जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, राइट? तो उसके साथ साथ एज द स्टील सेक्टर इज कोरिलेटेड विद दिस, तो आपका ओवरऑल सेक्टर का भी ग्रोथ होएगा. Last year the growth was around 18% steel sector का. It was from 99.6 million tons. From that level it has come to it has become 118.4 million tons का. तो almost 18% का आपका sectoral growth हुआ है, right? Yes. And in spite of माने GDP growth rate being in negative, in spite of GDP growth rate in negative, आपका स्टील सेक्टर का ग्रोथ हुआ था आपका 18% का कैलेंडर ईयर बेसिस पे, एंड आपका FY बेसिस पे इट वाज ऑलमोस्ट फ्लैट, इट वाज अराउंड 2.5% का ग्रोथ, एंड कैलेंडर ईयर बेसिस पे आपका 18% का आपका सेक्टरल ग्रोथ हुआ था. तो आपका अगर आपका जीडीपी का ग्रोथ हाई रहेगा तो आपका स्टील सेक्टर का ग्रोथ भी हाई जाएगा, एटलीस्ट एज इट इज सो मच डायरेक्टली कोरिलेटेड, तो ये तो हाई जाएगा. इंटरेस्ट रेट फोरकास्ट, तो इंटरेस्ट रेट का भी इम्पैक्ट जो होएगा आपका स्टील सेक्टर पर इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट होगा? अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो स्टील सेक्टर का आप लोग जानते हो कि बहुत ज़्यादा ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, राइट? सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द बोरोड मनी टू डू द कैपेक्स. तो in order to finance their capex, they need to take debt from the banks, and वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपका स्टील सेक्टर का बॉटम लाइन, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एरिया में आपका मार्जिन हिट होगा, राइट? पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में क्या है आपका? पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में आपका रशिया साइड में अभी क्या हो रहा है? आपका मेटल्स का प्राइस हाई हो रहा है, राइट? तो पॉलिटिकल साइड में आपका रशिया में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका रशिया से सप्लाई साइड आपका कॉन्स्टेंट आ रहा है. इसके चलते आपका टोटल मेटल पैक का, आपका एल्यूमिनियम, आपका कॉपर, आपका जिंक, आपका टोटल मेटल पैक का ही प्राइस हाई हो रहा है, राइट? अभी स्टील का भी तो प्राइस हाई हुआ है. आई थिंक जस्ट 1.5 weeks ago all the steel companies has actually take a hike on their finished steel prices. तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का भी ऐसे इम्पैक्ट हो सकता है. देन आपका वाई एक्चुअली देन आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट का आपका चाइना विद ऑस्ट्रेलिया, दोनों में क्या हुआ था कि भाई चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया में दे हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज लाइक द माइनिंग हब एंड चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब. तो फॉर द रॉ मटेरियल्स चाइना वॉज ह्यूजली डिपेंडेंट अपॉन ऑस्ट्रेलिया, बट ड्यू टू दिस कोविड इवन माने द PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया ही केम फॉरवर्ड and publicly he said कि भाई this is a Chinese virus and for them our economy has taken a huge hit. ऑस्ट्रेलिया कैन से दिस थिंग, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने अपने इतना अच्छा आपका ट्रेड पार्टनर के बारे में ऐसा बोल दिया. एंड दे हैड दिस इन 2020, दे हैड दिस व्हाट डू यू कॉल दिस माने मिलिट्री एक्सरसाइजेस दे हैड इन देयर माने दिस कोस्टल एरियाज. तो उसके चलते आप सोचिए, उसके चलते आपका उस टाइम पे आपका 2021 में आपका अराउंड इट वाज द मंथ ऑफ मे, उस टाइम पे आपका स्टील प्राइसेस में मतलब आग में घी डालने का काम इसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ने किया था. एंड अभी का आप लोग देख रहे हो एटलीस्ट एल्यूमिनियम का, एटलीस्ट आपका क्रूड ऑयल का क्या हुआ, इतना प्राइसेस क्यों हाई हुए? आपके जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राइट? क्लियर ना? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग और गेटिंग बोर्ड? Understand? तो आप लोग
कंट्रीब्यूट कीजिए, आगे आइए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए. इफ यू गाइस आर गेटिंग बोर्ड देन टेल मी, आई विल चेंज माय मैंने वे ऑफ डिस्कसिंग. आपको बोर करना मेरा काम नहीं है. चलिए, सो लाइक दैट दिस पॉइंट्स आपको एनालाइज करने चाहिए. एंड फ्यू मोर थिंग्स, आपका इंडस्ट्री एनालिसिस पार्ट में किया जाएगा. इंडस्ट्री एनालिसिस आप लोगों ने ऑलरेडी किया है. कंपनी फंडामेंटल्स, तो कंपनी फंडामेंटल्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गाइस मस्ट रीड in order to make a good quality equity research report. Now let's come to this thing now. अच्छा, analysis of annual report, last 3 to 5 years annual report आपको ज़रूर पढ़ने होंगे. if not available, then available annual report plus RHP, comma investor presentation. अच्छा, let me explain this thing. Analysis of annual report of last 3 to 5 years. Nykaa, एक कंपनी Nykaa, last year only it got listed. तो इस कंपनी का 3 to 5 years का एनुअल रिपोर्ट छोड़िए, इवन लास्ट 1 year का भी एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा. अच्छा, लेट्स से कंपनी कॉल्ड हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका 3 to 5 years का, उसका 10, 15, 20, 25, 30 years का भी एनुअल रिपोर्ट इज अवेलेबल, राइट. सो फॉर दोज काइंड ऑफ कंपनीज जस्ट गेट मैंने रीड लास्ट 3 to 5 years ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड ऑल्सो अदर इन्फॉर्मेशन. एंड लेट्स से कंपनी फॉर अ कंपनी लाइक नायका और अडानी विल्मर, फॉर दोज कंपनीज देयर एनुअल रिपोर्ट इज नॉट अवेलेबल. But as this financial year 2022 has ended, around the month of June or July, they will have their AGM, annual general meeting. Before their AGM is done, before that they will publish their annual report, which will be completely audited by the external auditors as well. So then you will have 1 year of annual report. एंड फॉर द डेटा, मैंने उससे पहले का भी अगर आपको डेटा चाहिए तो आप क्या व्हाट इज द डॉक्यूमेंट दैट यू शुड बी रेफरिंग टू इज दैट RHP, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस. ये आपका कंपनी के वेबसाइट में मिल जाएगा, सेबी के वेबसाइट पे मिल जाएगा. इट इज़ इजीली अवेलेबल. मतलब इफ़ यू जस्ट सर्च अडानी विल्मर RHP you will get it. And it is मैंने द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू फाइल इन ऑर्डर टू कम हिट द सेकेंडरी मार्केट थ्रू IPO. ये आपका आपका प्राइमरी मार्केट थ्रू IPO, आपका RHP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, इट इज़ जनरली मैंने पब्लिश्ड क्वार्टरली, बट हर एक कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं देता है. बट इफ़ इट गिव्स तो बहुत बढ़िया, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मैंने गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कंपनी. ये आपका बहुत शॉर्ट में एकदम सिंपल वे में आपका इन्वेस्टर फ्रेंडली वे में रहता है. बट हाँ, इंफॉर्मेशन ऑन दिस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इट इज़ नॉट ऑडिटेड, तो उतना ज़्यादा रिलायबल इट इज़ नॉट. ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है. क्वार्टरली रिजल्ट्स अगेन नॉट ऑडिटेड, अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स होगा. बट या ऑन अ क्वार्टरली बेसिस यू कैन रेफर टू इट. डेफिनेटली वी हैव टू रेफर टू इट, एक्चुअली नॉट वी कैन, वी हैव टू रेफर टू इट. लेट्स से आपके पास 3 quarters का भी रिजल्ट अवेलेबल है एंड 4th quarter का रिजल्ट इज गोइंग टू बी अवेलेबल विद इन दिस 45 days विंडो फ्रॉम 1st of April टिल आपका इसमें होगा 30, दैट मीन्स आपका 15th of May तक का आपका एक विंडो रहेगा 45 days का, फ्रॉम 1st April टिल 15th of May. उसके बीच में आपको 45 के डेज के बीच में यू हैव टू पब्लिश योर रिजल्ट. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, गो एंड मैंने यू हैव टू गो एंड से इट टू द सेबी कि भाई नहीं कर पा रहे, थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहिए. देन प्रेस रिलीजेस, ये आपको रेफर करने होंगे. कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स डेफिनेटली पढ़ने होंगे आपको. मैनेजमेंट इंटरव्यू ऑन वेरियस न्यूज़ चैनल्स, इसको भी आपको रेफर करना होगा. अच्छा, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ EPS ग्रोथ रेट मार्जिन, अच्छा इसको बाद में समझाते हैं. ये सब इंफॉर्मेशन का आपको. अच्छा, कॉन कॉल क्या होता है, डू यू गाइस नो इट? कॉन कॉल, दिस थिंग आई थिंक इज न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? कॉन कॉल, Yes, sir. Can you please explain it? yeah definitely. Conference call available of the company Exactly. on the website. It will be available. Not really on the website always. They do not share it always on their website. Let me just show you. आपको यहाँ पे लेट से कौन से कंपनी का बोलते हैं, TCS का लेते हैं. ट्रेंड आपका इसका एक वेबसाइट है, ये आप देखते हो, दिस वन वेबसाइट Alpha Street India. Just go to YouTube, search TCS Con Call. TCS का चाहिए, TCS Con Call लिखो. देखिए 3rd quarter FY22 का, अभी आपका 4th
क्वार्टर FY22 का रिजल्ट कब आएगा? 11th of April को. दैट मीन्स परसों ही आएगा. अभी कौन है? तो देखिए TCS का कॉन कॉल इज अवेलेबल हियर. जस्ट क्लिक ऑन इट. यू कैन लिसन टू द कॉन कॉल. एंटायर आपको ऑलमोस्ट 1 आवर का आपका वीडियो रहेगा. Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online. Ladies and gentlemen, good day and welcome to the TCS earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, Okay, this call and there will be an took place opportunity on, for you to ask 12th of questions January after the 2020. presentation concludes. इसका थोड़ा मजा लीजिए. Have fun. Just wait. Measures covering 7,000 plus batch. यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट दे आर एक्सप्लेनिंग कि हाउ द एंटायर माने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ऑन Q3 हैज बीन. वहाँ पे ये लोग आपका बोल रहे हैं. एंड यू गाइस हियर very often you guys hear this terms called management guidance, right? So they actually give their guidance on this con call itself. तो यहाँ पे थोड़ा कंपनी अपने परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बोलेगा. थोड़ा मैनिपुलेट करके थोड़ा बड़ा चढ़ा के थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक The होके कंपनी traditional बोलेगा. manual approach was inefficient and resulted in spoilage of the cargo. अब रुकिए. Wish everyone a happy new year and अच्छा, थोड़ा आगे मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए. यहाँ पे जाके एनालिस्ट जो होते हैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम कंपनीज लाइक ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, दे कैन डायरेक्टली शूट बुलेट्स एट दिस कंपनी. मतलब नॉट लिटरली बुलेट्स, गन से फायर नहीं करेगा, बट हाँ थ्रू देयर क्वेश्चंस दे कैन एक्चुअली आस्क मैंने वेरी सीरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू द मैनेजमेंट डायरेक्टली एकदम. उसका भी मजे लेना चाहिए. Reduction in budgets. Some of them have increased budgets. They would like to keep investing in specific initiatives across safety, resilience, and growth, along with innovation. Right. So, from that perspective, at least for the foreseeable future, right, we believe that the demand environment will continue to be there. And I think, the industry per se has been on an accelerated hiring, number one. Number two is that the demand for such skill sets is increasing, for sure, right? So from what I would say is that the demand will continue for at least the next 2-3 quarters, and barring any unforeseen events in the world, the trend is likely to continue. okay. And just a follow-up question, which is a bookkeeping. We have 2 large deals in the BFSI, which may BFSI में मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 2 लार्ज डील हुए हैं. एंड दिस क्वेश्चन इज माने समवन एटलीस्ट माने वेरी हाई सीनियर एनालिस्ट ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो जस्ट लिसन टू इट. have a contractual rundowns, which may be coming in the fourth quarter. एक सेकंड इसको स्लो कर देते हैं सो दैट एटलीस्ट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. So is it fair to say fourth quarter may be seasonally softer than we have 2 large deals in the BFSI which may have a contractual rundowns which may be coming in the fourth quarter. So is it fair to say fourth quarter may be seasonally softer than the earlier years, or we believe there are enough number of new deals which will mitigate the same as a whole? And just on margins, whether most of the supply side intervention which we consciously took in Q3 are largely over or may continue in the next 4Q or 1Q as well? Deals in BFSI will not have a ramp down, but the base effect will kick in the fourth quarter, as you rightly pointed out. But overall, the demand environment is fairly strong. So we are endeavor to maintain the demand momentum, but next quarter we will see a base effect kicking in BFSI specifically. चलिए. So this is a con call and this particular YouTube channel ना Alpha Street India, यहाँ पे generally almost all the companies के आपको ये con call is very easily available here. ठीक है. You guys can refer to this particular YouTube channel or also randomly just go and search on YouTube कि भाई con call on this company. You will find it very easily. You guys can find it. ठीक है. Okay. So this was the con call of TCS, and con call transcript I have written here. Con call transcript is generally available on company's website itself.
तो वहाँ पे आपको कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो भी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन टू प्लेस ना, यू विल गेट इट इन अ रिटन फॉर्मेट. बट द प्रॉब्लम विद द कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट इज दैट यू won't be able to understand how much confident the management was speaking, how much confidently the management was speaking, what was the management's tone. मतलब हॉकी शो के बोल रहा था कि आपका थोड़ा सा रिजर्व होके बोल रहा था, देयर एक्चुअल इंटेंशन बिहाइंड देयर वर्ड्स. मतलब देखिए सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, राइट, उसके पीछे का इंटेंशन भी आपको समझनी चाहिए. मैंने हाउ यू से इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन मैंने द वर्ड्स इन पर्टिकुलर, राइट. तो उसको आपको समझना होगा कि एक शब्द को, एक पर्टिकुलर वर्ड को मैनेजमेंट कैसे बोल रहा है, कैसे वो साउंड कर रहा है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर पर्सनस टोन, कॉन कॉल खुद से ऐसे सुनने चाहिए आप, ठीक है. एंड नॉट ओनली यू माने जस्ट लिसन टू इट, यू लिसन टू इट इन अ वे, टेक अ माने क्या बोलते हैं, टेक अ कॉपी एंड पेन, सिट डाउन, कॉन कॉल सुनिए. जहाँ पे आपको कोई लग रहा है कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पॉज कीजिए वहाँ पे in your own language. Let's say Hindi is your mother tongue, let's say Marathi is your mother tongue, let's say Tamil is your mother tongue. उसमें आप लिख लीजिए कि management has said this thing, this thing, this thing, and this was his sound, this was his way of saying it. ये confident था कि नहीं, ये आपका थोड़ा कुछ छुपा के बोल रहा है कि नहीं. So right like that, you guys just note down everything in a con call. So that way it would help you immensely going forward in future. And going forward in future, अगर आप let's say you become a senior analyst in let's say CRISIL or ICICI Securities or JP Morgan or any large companies like that, वहाँ पे आपको खुद मैनेजमेंट के साथ जाके इंटरव्यू करना होगा आपको. मतलब you will be in let's say you will be in Tata Steel's factory itself in order to verify कि what is happening there, in order to check what is actually happening on ground. तो वैसा करने के लिए you need lot of courage, lot of knowledge, lot of understanding of the business, right? तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर कीजिए, अभी से सीखते रहिए थोड़ा थोड़ा करके. एंड द कॉन कॉल इज द फर्स्ट स्टेप टू एनालाइज द मैनेजमेंट. मतलब एक आदमी के आर पार देखना चाहिए आपको, देखने आना चाहिए आपको. आपका येस बैंक का भी तो ऐसे मैनेजमेंट इंटरव्यूज होते थे, बट दे हैव मिस्ड इट. बट द स्मार्टर गाइज समहाउ दे वर सेव्ड. तो वही सीखना पड़ता है, वही आपका एक्सपीरियंस के साथ आता है. Even me being in the market for so long, still I as I said today in the beginning of this session, as I said that I am a better investor than an analyst. So that is the thing. अच्छा, company fundamental analysis में what are the next things that should be there is the trend analysis of EPS growth rate. आपका EPS का growth rate last 5 years का आपका क्या चल रहा है. Let's say 5 years ago your EPS was 10 rupees per share, अभी आपका चल रहा है लेट्स से 25 रुपीज़ पर शेयर. तो आपका कितने CAGR से EPS हैज़ ग्रोन, मार्जिन का परसेंटेज हाउ इट हैज़ ग्रोन, आपका लेट्स से 10% से इट हैज़ बिकम 25% आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन. तो उसका CAGR क्या चल रहा है, आपका पिछले 5 साल का आपका मार्जिन क्या रहा है, CAGR ऑफ रेवेन्यू, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों का ही देखना होगा. आपका नेट प्रॉफिट वर्सेस ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री एंड इट्स मेन कम्पिटिटर्स, EBITDA net profit and trend of the industry and its main competitors. आपका TCS का main competitor कौन है, आपका Infosys है, आपका Wipro है, आपका HCL Tech है, आपका Tech Mahindra है. तो इन 5 कंपनीज का आप देखिए कंपेटिटिव पीयर एनालिसिस कीजिए. मतलब पीयर एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है कि भाई लेट्स से योर कंपनी इज ग्रोइंग एट 10% and your company is let's say 30% market share and your competitor has let's say 25% market share, but if it is growing at 20%, so within 2-3 years your competitor can become a larger player than you, right? 25% market share है आपके कंप्यूटर के पास, आपका मार्केट शेयर है 30%, you are growing at 10%, तो next year your growth will be how much? Your next year your growth will your position will be 33%, right? आपका कंप्यूटर का मार्केट शेयर है 25%, अगर वो 20% से अगर ग्रो करेगा तो नेक्स्ट ईयर उस कंपनी का मार्केट शेयर कितना होगा, 30% हो जाएगा. नेक्स्ट ईयर जाइए आप 33% का 10% मतलब 3.3 ऐड होगा, मतलब आपका 36.3 होगा, बट आपका ऑलरेडी 30 है, मतलब नेक्स्ट ईयर आपके कंप्यूटर का मार्केट शेयर हो जाएगा 36%. आप थर्ड ईयर में जाइए, आपका मार्केट शेयर अगेन 10% ग्रो करेगा, बट आपका कंप्यूटर का मार्केट शेयर 20% से फिर से ग्रो करेगा, तो ही विल बीट यू डाउन, राइट? तो आपका कंप्यूटर विल बिकम ग्रेटर देन greater player than him, larger player than him. So this is the PR analysis.
कंपनी फंडामेंटल्स में एक मार्केट शेयर ग्रोथ जो अभी जस्ट आई एक्सप्लेन, कंपेटिव एडवांटेज, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग, रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स वहाँ पे आपको स्टडी करने होंगे. आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर मार्केट शेयर ग्रोथ फिर से रिपीट करेंगे प्लीज. मार्केट शेयर का ग्रोथ आपने बताया ना, वो एक बार खाली रिपीट करेंगे प्लीज. लेट्स से आप TCS हो, आप XYZ कोई भी कंपनी हो, लेट्स से आपका 30% मार्केट शेयर है, आपका जो कंपटीटर है उसका 25% मार्केट शेयर है, ठीक है, बट आपका कंपनी का CAGR है 10%, मतलब आपका कंपनी 10% से ग्रो करता है मार्केट शेयर, ठीक है. तो नेक्स्ट ईयर आपका मार्केट शेयर ग्रो करके कितना होगा? 33%. आप टर्नओवर को ही देख लीजिए, कोई बात नहीं, आप सिर्फ टर्नओवर को ही देख लीजिए. आपका टर्नओवर था लेट्स से आपका 30 करोड़ था, 10% से आपका CAGR ग्रो करता है आपका कंपनी का टॉप लाइन टर्नओवर. तो नेक्स्ट ईयर आपका मतलब आपका टॉप लाइन क्या होगा? 33 करोड़ होगा, बट आपका जो कंपीटर है 25%, जो जिसका लेट्स से 25 करोड़ का उसका टर्नओवर ही है, फिर आप उसका 25% आप उसका मार्केट शेयर ही समझ लीजिए, ठीक है, वो 20% से ग्रो करता है. तो नेक्स्ट ईयर आपका कंपीटर का 25 से बढ़ के वो तो 30 हो जाएगा, राइट? 30 होगा कि नहीं? सिंपल 25% का 20% आप ग्रो कीजिए, कितना हो रहा है? 25 इंटू 120/100 करने से कितना होगा? आपका 30 हो रहा है, ठीक है. हाँ सर. हाँ. तो नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है आपका? ये आपका ईयर 1 का हो गया, आपका 0 से ईयर 1 तक का हो गया. अब आपका फर्स्ट ईयर में क्या होता है? 30 से बढ़ के 33 हुआ. अब आपका कंपनी 10% से ग्रो करता है, तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा? आपका 33 का 10% होगा, मतलब 3.3, मतलब आपका ईयर 2 सेकेंड ईयर एंडिंग में जाके आपका कंपनी का कितना होगा? 36.3 होगा, राइट? आपका 36.3 हो रहा है, 33 उसका 10%, एंड आपके कॉम्पिटिटर का कितना था? 25 से बढ़ के वो 30 हुआ. अब 30 से बढ़ के कितना होगा? 36 हो जाए, 20% बढ़ेगा तो. अब आपका कंपनी 36.3 था, उसका 10% कीजिए तो 3.63 बढ़ेगा, राइट? मतलब 39 ऑलमोस्ट 39 या 40 के आसपास होगा, बट आपका ऑलरेडी 36 हो गया है, तो 36 का 20% फिर से ग्रो करेगा, मतलब 7.2 ग्रो करेगा. मतलब 36 प्लस 7.2 करके देख लीजिए, इट इज अराउंड 43, राइट? तो आपके कंपटीटर ने आपको बीट कर दिया. मार्केट शेयर ग्रोथ. सो सर, आप मार्केट शेयर ग्रोथ कैलकुलेट कैसे करते हो? मतलब टर्नओवर का, कंपनी का टर्नओवर डिवाइड बाय क्या करते हो आप? टोटल मार्केट साइज. मार्केट शेयर कैसे कैलकुलेट करते हो वो आप पूछ रहे हो क्या? हाँ. बोलते हैं ना कि भाई ये आपका $500 बिलियन का इंडस्ट्री है, ये आपका $200 बिलियन का इंडस्ट्री है, मार्केट साइज इतना है, इसका मार्केट साइज उतना है. ये आपका कंपनी के मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, मतलब आपका डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोल के एक चीज होता है, एनुअल रिपोर्ट. वहाँ पे आपको MDA मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस बोल के एक सेक्शन होता है, वहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन इस मतलब क्लियरली गिवन है, ठीक है. वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा. मुझे कहाँ से पता चलेगा? मैं जानता हूँ कि आपका टाटा स्टील का मार्केट शेयर इज 30% एंड JSW का मार्केट शेयर इज अराउंड 24% था, आई थिंक. एक बार देखना पड़ेगा, 24% के आसपास होगा JSW स्टील का. तो मुझे कहाँ से मिला? मैंने तो एनुअल रिपोर्ट से पढ़ा है. ओके, ठीक है, थैंक यू. तो ये हो गया आपका कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस. अच्छा, यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि आई एम स्किपिंग 1 or 2 पॉइंट्स इन बिटवीन. एक्चुअली यू गाइस हैव वन डेडिकेटेड वीडियो ऑफ 1 hour. वहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट एकदम एग्जाम्पल के विथ लाइव एग्जाम्पल इट इज एक्सप्लेन देयर. इट इज ऑन आवर यूट्यूब चैनल, सो आई विल शेयर दैट लिंक विथ ऑल ऑफ यू गाइस. अलॉन्ग विथ दैट, एज आई सेड कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस का, लेट मी शो यू कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस. वहाँ पे आपका एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस. दिस पार्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड अनदर थिंग इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. वहाँ पे आपको नंबर्स का एनालिसिस करना होगा, आपको बैलेंस शीट खुद से पढ़ने होंगे, वहाँ पे हर एक नोट्स टू अकाउंट्स को पढ़ना होगा, उसका बाइफर्केशन समझने होंगे, उसका अंडरस्टैंडिंग. नोट्स टू अकाउंट्स में लेट्स से आपका एक पर्टिकुलर डिप्रिसिएशन है, राइट? वहाँ पे आपका इंटेंजिबल एसेट्स का एक आपका अमोर्टाइजेशन जो होता है उसके अंदर का भी नोट्स होता है, वो भी समझाया गया है. उसका डिटेल वीडियो इज ऑन आवर यूट्यूब, तो उसका बैकअप यू गाइस विल गेट इट आफ्टर द सेशन इज ओवर. आई विल शेयर ऑल दोज थिंग्स, चिंता मत कीजिए. अच्छा, ये सब जो अभी मैंने बोला यहाँ पे समरी इज गिवन देयर कि भाई कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस, वहाँ पे आपका मेन चीज़ है. देखिए क्या क्या हम लोग
जनरली देखते हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच लाइन आइटम्स, दैट इज रेवेन्यू, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट आइटम्स, कैश फ्लो पैटर्न, notes to accounts, etc. Ratio analysis, management discussion analysis, director report, auditors report पढ़ना भी बहुत important है, but unfortunately auditors report बहुत ज़्यादा लोग समझते नहीं हैं and पढ़ते almost like 1 or 2% लोग only. That is the main problem. इतना कुछ पढ़ता ही नहीं है कोई. Auditors report तो only hardly I think 1 or 2% लोग पढ़ते हैं. Corporate social governance ये सब आपको स्टडी करने होंगे. अच्छा, आई विल शेयर एंटायर दिस पीपीटी टू ऑल ऑफ यू गाइस, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू राइट डाउन एनीथिंग. कंपनीज फंडामेंटल एनालिसिस, वहाँ पे आपको और क्या चाहिए? ब्रोकरेज हाउसेस का रिपोर्ट्स, अदर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स, इनिशियटिंग कवरेज रिपोर्ट्स, डिफॉल्ट अपडेट रिपोर्ट्स, फ्लैश रिपोर्ट्स, रेटिंग एजेंसी का रिपोर्ट, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ये सब आपको वहाँ से रिपोर्ट्स को आपको रेफर करने होंगे. वैल्यूएशन एनालिसिस इज गिवन हियर एंड दिस इज द ऑनगोइंग रिव्यू पार्ट. तो थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को इक्विटी रिसर्च के बारे में. नाउ इन ऑर्डर टू राइट वन इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मैं अभी आज के लिए बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाऊंगा. कल हम लोगों का सेशन फिर से है, तो बिफोर मैंने टुमारोज क्लास, आपका कल का जो क्लास होएगा उससे पहले आप लोगों को क्या थोड़ा देख लेना चाहिए. लेट मी जस्ट मैंने मेंशन इट एंड सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. लेट मी जस्ट शो यू दोस वीडियोस. अच्छा, ये दांत फाड़ के मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन कौन सा चीज़ आपको इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाने से पहले आपको जरूर रेफर करनी चाहिए. दैट इज गिवन देयर. Those of you who are not yet done with the sectoral report, this report introduction to steel sector, ये वाला वीडियो देखिए. इंडस्ट्री ओवरव्यू रिपोर्ट राइटिंग, ये वाला वीडियो देखिए. ये दोनों वीडियो आपका मतलब इफ़ यू गाइस वॉच दिस 2 वीडियो ओनली, और कोई वीडियो आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. दीज आर द पॉइंट्स दैट इज मेंशन्ड इन दिस 2 वीडियोस. इतना ही देख लेंगे तो काफ़ी है. कोई भी सेक्टर के ऊपर, फार्मास्यूटिकल हो, आईटी हो, एफएमसीजी हो, कोई भी सेक्टर हो, आपका ऑयल एंड गैस हो, कुछ भी हो, काम हो जाएगा. इन्हीं 2 वीडियोस में आपका काम हो जाएगा. कैन यू गाइस सी दिस थिंग 2 वीडियोस? आपके इंट्रोडक्शन टू स्टील सेक्टर, इसमें प्रॉपर एग्जांपल के साथ दिया है, एंड आपका इंडस्ट्री ओवरव्यू रिपोर्ट राइटिंग, ये दोनों वीडियोस देख लेंगे, कोई भी सेक्टर का काम हो जाएगा. अच्छा, इक्विटी रिसर्च में दिस इज द मैंने मेन हम लोगों का वीडियो है. इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो पीपीटी में था सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर. इसको देखने के बाद क्या करना है? लेट्स से यू डू नॉट नो व्हाट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. एक्चुअली इफ आई टेल यू गाइस कि भाई ईपीएस कैलकुलेट करके दो, मोस्ट ऑफ यू, अरे बाप रे, हाँ, तो मोस्ट ऑफ यू गाइस ना वोंट बी एबल टू इवन कैलकुलेट सिंपल ईपीएस, नॉट इवन डायल्यूटेड वंस, बट द बेसिक ईपीएस ओनली. बेसिक ईपीएस भी आप लोगों से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ठीक से. उसके लिए वॉच दिस वीडियो. ईपीएस कैलकुलेशन ये चैनल पर ही है. उसके बाद एबिटा कैलकुलेशन, वैल्यूएशंस के बारे में हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो भाई वैल्यूएशंस एकदम बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन इज गिवन हियर. एबिटा कैलकुलेशन, एबिटा मार्जिन कैलकुलेशन, ईवी बाई एबिटा रेशियो, उसका बाद में देखेंगे. इसमें एबिटा कैलकुलेशन है, छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा, 1.5 के स्पीड में देख लीजिए. अच्छा, प्राइस टू बुक रेशियो कैलकुलेशन, पीवी रेशियो आप लोग जानते हो कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीवी रेशियो, बैंकिंग शेयर्स में पीवी रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, इफ यू डू नॉट नो वॉच दिस वीडियो. यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके दिखाया गया है कहाँ से कैसे करते हैं. अच्छा, ईवी बाई एबिटा रेशियो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ईवी बाई एबिटा रेशियो, यहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं, एयर इंडिया का टाटा ने जो एक्विजिशन किया है उसका एकदम आपका लाइव एग्जाम्पल देके आपको ये सिखाया गया है. ईवी बाई एबिटा रेशियो कि आपका एंटरप्राइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ, सब कुछ यहाँ पे है. ईवी बाई एबिटा रेशियो, दिस वीडियो, इसको आपको देखना चाहिए. और ये 4 वीडियोस देखने से आपकी इक्विटी रिसर्च का काम हो जाएगा. फिर इसको पहले देखना चाहिए. उसके बाद आपका रेवेन्यू एंड टोटल इनकम एनालिसिस, यहाँ पे एकदम कंपनी का 4-5 कंपनीज का 4-5 एनुअल रिपोर्ट्स खोल के यहाँ पे सिखाया गया है. दिस वीडियो इज सो लॉन्ग, 2 आवर्स का,
बट यहाँ पे आई थिंक HUL का था, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का था, TCS का भी आई थिंक था, टाटा स्टील का, जिंदाल स्टील एंड पावर का, JSW स्टील का, सब मिला के यहाँ पे ये वीडियो है। सारे कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट खोल के, नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ के, मतलब नॉट वर्ड बाई वर्ड बट लेटर बाई लेटर, मतलब रेवेन्यू, कॉमा, अदर इनकम एंड टोटल इनकम एनालिसिस, ऐसे इस वीडियो को एक्सप्लेन किया गया है हर एक नोट्स टू अकाउंट्स को। टोटल एक्सपेंस एनालिसिस, हर एक टोटल एक्सपेंस सेक्शन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक का आपका हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टैक्सेशन के पार्ट में अभी मत जाइए, यहाँ तक देख लीजिए आप लोग। बैलेंस शीट, टोटल एसेट एनालिसिस, टोटल एसेट साइड का हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड का वीडियो अभी पब्लिश करेंगे 2-3 दिन में, थोड़ा अभी काम का प्रेशर चल रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो बैलेंस शीट के टोटल लाइबिलिटी साइड का भी वीडियो आएगा, कैश फ्लो का भी टोटल वीडियो चैनल में अपलोड कर देंगे बहुत जल्द, ठीक है। सो दीज आर द वीडियोस, इफ़ यू रेफर टू, आपका काम हो जाएगा। कल मिलते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर्स वगैरह दिखा देंगे आप लोगों को, एंड रिजल्ट कैलेंडर का थोड़ा काम सिखा देंगे कल, ठीक है। Sir, can you please share all the links? यूट्यूब वीडियोस का Yes, sir. सब शेयर कर देंगे। Okay, sir. Thank you, sir. 1 by 1 सभी मतलब ग्रुप में दे देंगे। एक पर्टिकुलर मैसेज टाइप करेंगे, उसमें सबका लिंक दिया रहेगा, नाम लिख के दिया रहेगा। बट हर एक वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को ईच एंड एवरी स्टेप में जाके डाउट होगा। फिर आप लोग ईच एंड एवरी स्टेप में आके मुझसे पूछोगे एंड मैं उतना कैसे जवाब दूंगा। तो हर एक वीडियोस को देख लीजिए। एंड मेन जो वीडियोस था 1 आवर का इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग स्टेप बाय स्टेप, उसको फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा। कोई भी कंपनी वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बस उसमें वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन का पार्ट नहीं है जो कि हम लोग सिखाते हैं। अभी तो वेबसाइट चालू किया है, जस्ट देखते हैं, उसमें धीरे धीरे सिखाएंगे बहुत कुछ। एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट बेसिक 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल बनाना, जो 3 स्टेटमेंट आपका सिर्फ ड्राफ्ट करना, मतलब आपका PL, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ये तीनों स्टेटमेंट आपका एक्सेल में कैसे बनाते हैं वो बोलेंगे तो सिखा देंगे, वहाँ तक, उससे आगे नहीं। DCF वगैरह नहीं, वहाँ तक आई थिंक सिखा देंगे आप लोग को, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ओनली देन, अदरवाइज नॉट। Yes, sir. Very much interested. राइट नाउ ना, Yes, ये आप लोग बोल रहे हो कि हाँ इंटरेस्टेड, लास्ट तक देखते हैं कौन टिका रहता है। फिर फाइनेंशियल मॉडल का एटलीस्ट आधा काम तो सिखा ही देंगे, वहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, बहुत कुछ वहाँ पे सिखा देंगे। Okay. By the way, have you guys gone through our website? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, Yes, बोलिए, sir. how it is, वेबसाइट में क्या और इम्प्रूवमेंट्स आप लोगों को चाहिए। एक्चुअली मतलब इट विल टेक टाइम, बट वी विल इवन लॉन्च आवर ऐप ऑल्सो लेटर ऑन, अभी नहीं, बाद में। फाइनेंशियल मॉडलिंग भी सिखाएंगे एंड पूरा इक्विटी रिसर्च मास्टर कोर्स भी रहेगा हम लोग का एक प्रोग्राम, वहाँ पे मैं पूरा नहीं सिखाऊंगा, वहाँ पे आई विल बी टीचिंग ओनली मैंने बेसिक स्टाफ, एटलीस्ट मतलब हाँ 60% मैं ही सिखाऊंगा, बट 40% कंपनी के सीनियर एनालिस्ट आके सिखाएंगे। तो दैट ऑल्सो, दोज थिंग्स आर ऑल्सो मतलब इन आवर पाइपलाइन, प्लानिंग में है, अभी एग्जीक्यूशन में अभी आया नहीं है। देन CFA का भी कुछ चालू करेंगे, CFA लेवल 1 का क्लासेस वगैरह कुछ प्लान्स है, देखते हैं। अच्छा, आज की क्लास को रिगार्डिंग कोई डाउट है? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट टुडे? आज के क्लास का कोई डाउट है? सर आज का रिकॉर्ड क्या है, आप भेजने वाले हैं? कौन सा आज का क्लास रिकॉर्डिंग? हाँ जी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है। थैंक यू सर, एक क्वेश्चन है अपना tradingEconomics.com में इंटरेस्ट रेट फॉर यूरो और एक कंट्री का 0 है, सो दैट इज ए न्यूट्रल और देयर आर नो वेबसाइट में जाके वेरीफाई कीजिए। कुछ और वेबसाइट में जाके countryEconomics.com में जाके वेरीफाई कर लीजिए थोड़ा सा,
अदर वेबसाइट में भी जाके थोड़ा वेरीफाई कीजिए वो सब। रीजनिंग क्या हो सकता है? That's what I was trying to do. तो इंटरेस्ट रेट 0 का रीजनिंग क्या हो सकता है? जापान का हुआ था, जापान तो माइनस में चल रहा है। जापान में आपका 19 आई थिंक 85 में मार्केट जो क्रैश हुआ था अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। तो वही ऊपर रखना है इकोनॉमी को, क्या करें, किसी भी तरीके से करना तो पड़ेगा। दे ऑप्टेड फॉर दिस वे, इसका भी खाना ऐसा है। ओके, तो एनी अदर डाउट आज की क्लास के रिगार्डिंग? आज की क्लास के रिगार्डिंग एनी डाउट? सर क्लास का थोड़ा फीडबैक दीजिए, मतलब हाउ यू गाइस वांट द क्लास टू बी, आप लोगों को कैसे सीखना पसंद है? सर एक डाउट था सर, जो एनुअल रिपोर्ट जो है वो 1 ईयर का, 2 ईयर का, मतलब 3 इयर्स तक देखना है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें ज्यादा देखने चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, वो थोड़ा कल बताएंगे? वीडियो में है क्या? रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग स्टेप बाय स्टेप, उसमें सब कुछ है। कौन कौन से पॉइंट्स आपको देखने होंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है कंपनी के बारे में। आपका टेबल ऑफ कंटेंट में वहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो आपका जो मोस्ट करंट एनुअल रिपोर्ट होगा उसका सब कुछ पढ़ना है, उसका सब पढ़ना है, उसका कुछ छोड़ना नहीं है। बट उसके प्रीवियस ईयर का ओनली डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसी के अंदर आपका एमडीए आ जाएगा, आपका कॉन्सोल नंबर्स, स्टैंडर्ड नंबर्स पढ़ना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, वही आपका जो दिखा है ना लास्ट में था वहाँ पे एडिशन एनालिसिस, वही सब पढ़ना है आपको। ये अगर आप 5 साल का भी पढ़ोगे तब भी वही पढ़ना है। ओके सर। अच्छा, कंपनी में आज अलॉट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, कल कौन सी कंपनी के ऊपर काम करेगा वो कल बताएंगे आपको, ठीक है? कल Okay. आपका